So hello everyone, welcome to my channel CS Legal World. Today we are doing our second part of this chapter, which is reporting. Reporting का एक video already है, in which we have already covered what is financial reporting. We have covered that. We have covered the main components of financial reporting in that. Also, we have covered the importance and limitations of financial reporting in that. So from today we are doing non-financial reporting. क्या होता है? What exactly do you understand by non-financial reporting? And obviously उसके आगे की चीज़ें. So firstly, when we talk about non-financial reporting, what does it say? Understand that it contains the information relating to company's performance during the previous year, future projections, award achievement and penalty imposed. That non-financial reporting मतलब कि इसमें financial चीज़ तो आप कुछ report नहीं कर रहे, तो obviously कंपनी के performance के बारे में ही करोगे, वो भी कंपनी का कौन सा परफॉर्मेंस जो आप कर चुके हो, मतलब प्रीवियस ईयर का, फ्यूचर प्रोजेक्शंस आपके पास जो होंगे, अवार्ड अचीवमेंट्स कुछ होंगे, पेनल्टी कुछ इम्पोज हुई होगी रेगुलेटर्स से. सो वो सारी चीज़ें आप इन्फॉर्म करोगे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. अगेन, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, डिस्क्लोजिंग एंड बीइंग अकाउंटेबल to internal and external stakeholders for organization performance towards the goal of sustainable and inclusive development. Okay. After that, it says that due to negative externalities of economic development, the practice of non-financial reporting started largely in response to pressure from non-governmental organizations जैसे कि NGO and civic society, which claimed that many firms lacked social and environmental responsibility. Epitomizes. So basically, it epitomizes that a company's financial health is dependent on much more than the assets on its balance sheet and the movements on its profit and loss account. So non-financial reporting is nothing but an opportunity to communicate in an open and transparent way with stakeholder, matlab transparency. In their non-financial report, firms volunteer an overview of the environmental and social impact during the previous year. So the information in non-financial report contribute to the building up कंपनीज रिस्क रिटर्न प्रोफाइल. नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली व्हेन वी टॉक की नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो जो बोर्ड रिपोर्ट हम बनाते हैं अंडर सेक्शन 134, दैट इज हियर अंडर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR पार्ट 2, दैट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. दीज थ्री रिपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो व्हाट डिड वी एग्जैक्टली अंडरस्टूड टिल नाउ इज दैट कि नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंपनी का पहले का प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, प्रोजेक्शंस के बारे में पता चलता है, अचीवमेंट्स के बारे में, पेनल्टीज कुछ इम्पोज किए वो पता चलता है. देन दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, डिस्क्लोजिंग एंड बीइंग, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू, सॉरी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू you just inform to the stakeholders whether that they are internal or external about your performance. So you are just accountable to them for this. ड्यू टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बेसिकली ये क्यों देना ज़रूरी हो गया, जो NGO और सिविक सोसाइटी थी, दे क्लेम दैट कि आपके कंपनी जो चल रही है उसकी वजह से पीछे इंडस्ट्री में, पीछे अपने सोसाइटी में या फिर अपने किस तरह से एनवायरनमेंट में किस तरह से हार्म हो रहा है, देखना है यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. So the information in non-financial report contributes to the building up company's risk return profile. इसमें again क्या है, बोर्ड रिपोर्ट है, CSR and CSR पार्ट 2. सो बैकवर्ड बोर्ड रिपोर्ट में देखते हैं अब आगे क्या दिया है चीज़ें. यहाँ पर आना. So the Companies Act 2013 requires the board of directors of every company to attach its report to financial statement to be laid before the members at AGM. क्या बोला मैंने? Companies Act 2013 require that board of directors of every company to attach, board of directors का जो report है, board report, they have to attach, मतलब कि board report कहीं ना कहीं annual general meeting में जाएगा, किसके साथ? annual report के साथ जाएगा. So the board report is an important means of communication by the board of directors to company with its stakeholders. So the board report provides the stakeholder with both financial and non-financial information. जब बोर्ड रिपोर्ट है उसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन रहेगा, including the performance and prospects of the company, relevant changes in the management, capital structure, recommendation, etc. So the Companies Act 13 mandates certain disclosure to be made in the board report. A listed company is also required to comply certain additional requirement as stated under the SEBI
loader regulation 15. Similarly, a companies whose securities are listed on an overseas stock exchange, मतलब किसी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है, लेट्स से वो यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, so is required to comply with additional requirement as may be specified by such stock exchange. Further, a company which is regulated under other laws may also be required to make additional disclosure in the board report. The board report should be based on company's standalone financial statement and not on consolidated financial statement. ठीक है, should relate to financial year for which such financial statement is prepared. Board report should avoid repetition of information if any information is mentioned elsewhere in the financial statement. So a reference should be given that this information is there. You can see there. So a board report should typically include the information under the following heads. But before we do this one, इसमें से इसका क्रक्स निकाल के उसको मार्क कर लेते हैं. So all we have to know is that Company Acts mandate करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू अटैच बोर्ड रिपोर्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपका बोर्ड रिपोर्ट जाना चाहिए टू प्रेजेंट एट एजीएम. बोर्ड रिपोर्ट में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों होंगे. और क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, चेंज हो रहा है मैनेजमेंट में कुछ, वो चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ है, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा. कंपनी एक्ट जो है मैंडेट करता है टू मेंटेन सर्टेन डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट. अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी लोडा फॉलो करना पड़ेगा. कंपनी आपके किसी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया तो वहाँ के भी कुछ एडिशनल जो डिस्क्लोजर है वो फॉलो करने पड़ेंगे. बोर्ड रिपोर्ट जो है बेस्ड होता है कंपनी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, और ना ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से. बोर्ड रिपोर्ट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. कहीं अगर आपको लगता है पॉइंट मेंशन करना है तो बोर्ड रिपोर्ट में रेफरेंस दे दो कि ये यहाँ पे मेंशन किया था. रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. तो आई होप इतना समझ में आया होगा. नाउ वी डूइंग बोर्ड रिपोर्ट शुड टिपिकली इंक्लूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेड, कि बोर्ड रिपोर्ट में ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होने चाहिए. कौन कौन से पहले वो पढ़ लेते हैं. कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल एंड डेट स्ट्रक्चर, क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिक्योरिटी आईपीएफ के बारे में, देन मैनेजमेंट के बारे में, disclosure relating to subsidiary associates and joint venture, details of deposits, particulars of loan guarantee and investment, particulars of contract or arrangement with related parties, CSR, conservation of energy technology absorption, foreign exchange earnings and outgo, risk management including management perception of risk, details of establishment of vigil mechanism, material order of judicial bodies, regulators, auditors report, secretarial audit report, explanation and report response to auditors qualification, compliance with secretarial standard, compliance with applicable regulation. My goodness. CIRP के बारे में है. Failure to implement any corporate action, annual return, additional disclosure under listing regulation, and disclosure pertaining to sexual harassment of women at the workplace. बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी. सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, बट डजंट मैटर. तो सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. व्हाट डू वी अंडरस्टूड इज कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में दिया है. डिपॉजिट के बारे में, विजिल मैकेनिज्म के बारे में, ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में, सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन एक्सपेंस क्वालिफिकेशन अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ है तो, फिर लोन गारंटी सिक्योरिटी के बारे में, CSR के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्लायंस ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल रेगुलेशन, कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जनरल इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, डिस्क्लोजर अबाउट जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी एसोसिएट्स एक्सेट्रा, CIRP के बारे में, एनुअल रिपोर्ट, एडिशनल डिस्क्लोजर अंडर लोडर, disclosure pertaining to sexual harassment of women at workplace, correct contracts with related party transaction, forex earning, credit rating, IPF, capital and debt structure. I mean, this is still better than that. Better than what do we call it as? जो पढ़ा अभी. अब फिर से एक बार इसको रीड करना एंड देन वी करना मूव फॉरवर्ड देयर. रीड करने की कोशिश करना. तो बोर्ड रिपोर्ट शुड टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दैट कंपनी का स्पेशल इन्फॉर्मेशन, कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जनरल इन्फॉर्मेशन, capital and debt structure of the company, credit rating of securities, IPF, then management disclosure to subsidiary and associates and joint venture, details of deposits, loan guarantee security, contracts or arrangement of related party, CSR, conservation of energy technology absorption, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो, रिस्क मैनेजमेंट, RM के बारे में है,
Details of establishment of vigil mechanism, material orders of judicial bodies regulator, material order कुछ मिला है क्या, auditors report, then secretarial audit report, explanation in response to auditor qualification, मतलब auditor से related तीन है, compliance with secretarial standard, compliance of applicable regulation, corporate CIRP के बारे में, failure to implement any कॉर्पोरेट एक्शन से बोनस वगैरह नहीं दिया, फिर एनुअल रिटर्न, एडिशनल डिस्क्लोजर अंडर लोडर एंड डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस. सो कैन यू टेल मी वन थिंग ओवर योर कि अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 26 पॉइंट्स है. टोटल 26 पॉइंट्स है. अच्छा, अब अगर मैं इसको छुपा दूँ फॉर सम रीज़न, सो वुड यू टेल मी कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, इसमें से क्या चीज़ें याद आ रही है मुझे? जो चीज़ें वो याद आ रही है वो मैं बता देती हूँ कि बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में होगा, आईपीएफ के बारे में होगा, डिपॉजिट्स के बारे में होगा, लोन सिक्योरिटी गारंटी के बारे में होगा. ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कुछ है तो वो होगा, पॉलिसी उसके ऊपर. इतना ही याद आ रहा है क्या? नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें ना. CIRP से रिलेटेड कुछ था, कॉर्पोरेट एक्शन से बोनस वगैरह के उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, फिर मैनेजमेंट के बारे में था, फिर और क्या था, और क्या था? सो एग्जैक्टली माई पॉइंट 26 पॉइंट है बट वी कुडंट रिमेंबर मूव. 10 भी नहीं रिमेंबर कर पाए, या 10 हो गया उससे ज़्यादा नहीं हो पाया. हालांकि लिखना तो पूरा ही है ना, तो इसको याद कैसे रखना है अब वो देखते हैं. आ जाओ यहाँ पे. सबसे पहले तो जो रिलेटेड है, जैसे डिपॉजिट हो गया, ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड तीन था, ऑडिटर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट एंड क्वालिफिकेशन. तो कैसे याद करें इसको? So from the above point, basically we can remember the 26 points. So let's understand what exactly do we have to remember over here. कि तीन तो ऑडिटर रिपोर्ट वाले प्रॉब्लम है, तीन तो ऑडिटर रिपोर्ट वाले पॉइंट है. तीन ऑडिटर रिपोर्ट से कौन से? एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर दूसरा इंटरनल ऑडिट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट और एक है उनका क्वालिफिकेशन. तीन तो ये पॉइंट हो गए. दो कंप्लायंस से रिलेटेड थे. कौन से कंप्लायंस से? कंप्लायंस होना चाहिए एक तो एप्लीकेबल रेगुलेशन से और दूसरा था कंप्लायंस विद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे लिख दो इफ़ यू वांट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल लॉ. ठीक है, तो क्या पढ़ा था? तीन ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड थे, दो कंप्लायंस से रिलेटेड है कि जो एप्लीकेबल लॉ है उनको कंप्लाई करो, और दूसरा कंप्लायंस था सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का. उसके बाद दो कंपनी के पॉइंट है याद है, कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड कंपनी का जनरल इन्फॉर्मेशन. फिर दो पर्टिकुलर्स थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले और एक पर्टिकुलर्स था लोन गारंटी सिक्योरिटी वाला और डिपॉजिट्स के बारे में बताना था. 5 पॉइंट ऐसे थे जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे, जैसे आरएम हो गया, विजिल मैकेनिज़्म हो गया, आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट, फिर सीएसआर हो गया, कंज़र्वेशन, दिस पॉइंट, कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड एब्ज़ॉर्प्शन, फॉरेक्स. तो ये 5 पॉइंट को साइड में रख लिया. 3 डिस्क्लोज़र वाले पॉइंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले, लिस्टिंग रेगुलेशन वाले एंड एनुअल रिपोर्ट वाले. 5 पॉइंट कंपनी से रिलेटेड है कि कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन, मैनेजमेंट, सब्सिडियरी या फिर जॉइंट वेंचर, क्रेडिट रेटिंग एंड आईपीएफ. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर, आई मीन दिस इज़ ऑल यू कैन डू. कि टोटल कितने पॉइंट है देखना, 3 2 2 3 एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के, 2 कंप्लायंस के, 2 कंपनी के पॉइंट, 2 पर्टिकुलर्स के, फिर एक डिपॉजिट्स आ जाएगा साथ में, फिर 5 पॉइंट अलग है, 3 पॉइंट है डिस्क्लोजर के, फिर 5 पॉइंट अलग है. सो आई होप
This is how you can remember all the 26 points out there. So now if we have to remember it, how we gonna remember that कि 3 ऑडिटर वाले पॉइंट कौन से हैं? 3 ऑडिटर वाले पॉइंट कौन से? ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। 2 कंप्लायंस वाले पॉइंट कौन से? कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। फिर 2 कंपनी के पॉइंट है, कंपनी का जनरल इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 2 पॉइंट है डिस्क्लोजर वाले, नहीं पर्टिकुलर्स वाले, आरपीटी के, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड डिपॉजिट्स के बारे में। और क्या था इसमें? लोन गारंटी सिक्योरिटी के बारे में। फिर 5 पॉइंट थे जो कि रिलेटेड थे, जैसे कि सीएसआर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एब्जॉर्प्शन, सीएसआर दिस वन, देन फॉरेक्स, देन आरएम एंड देन विजुअल मैकेनिज्म। ठीक है, 3 डिस्क्लोजर से रिलेटेड थे, तो उसमें पहला था एनुअल रिपोर्ट और 2 डिस्क्लोजर थे, एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला था और एक लिस्टिंग एग्रीमेंट था। उसके बाद लिस्टिंग रेगुलेशन था। उसके बाद 5 पॉइंट थे, वो भी कंपनी से रिलेटेड है, जैसे कि मैनेजमेंट, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर। फिर एक था क्रेडिट रेटिंग, फिर था कॉर्पोरेट एक्शन, एक और था विच इज़ आईपीएफ। तो नाउ इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू कुड डू दिस, तो यू कैन डू दिस, मतलब जस्ट रीड इट एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। सी, कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल एंड डेट स्ट्रक्चर नहीं लिया क्या हमने? ऐसे कैसे हो सकता है? कैपिटल एंड डेट स्ट्रक्चर क्यों नहीं आया? ठीक है, ले लेना उसको। इसी में आईपीएफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग आरपीटी एंड लोन गारंटी, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग, अच्छा डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू सब्सिडियरी एसोसिएट। तो सब्सिडी एसोसिएट ये जो है, ये इसमें आ रही है ना, डिस्क्लोजर में आ रही है, तो डिस्क्लोजर वाले पॉइंट में 4 कर दो। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग सब्सी एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर, और यहाँ पे डाल दो कैपिटल एंड डेट स्ट्रक्चर, डेट स्ट्रक्चर। सो नाउ इफ यू वांट टू रिमेंबर दीज पॉइंट, सबसे पहले 3 ऑडिटर का पॉइंट कौन सा था बेटा? 3 ऑडिटर का पॉइंट, चलो मैं बिना देखे बोल रही हूँ, लेट्स सी आपको याद आता है नहीं। 3 ऑडिटर के पॉइंट कौन से थे? तो 3 ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में था कि एक तो ऑडिट रिपोर्ट था, एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट था, एंड एक था ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, कुछ था ना, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट। क्या था वो? एक्सप्लेनेशन इन रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 3 ऑडिट के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। 2 कंप्लायंस के थे कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करो और एप्लीकेबल लॉ को कंप्लाई करो। उसके बाद 2 कंपनी के पॉइंट थे, कंपनी का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर 2 पर्टिकुलर्स थे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, एक और था जो मैं भूल जा रही हूँ बार बार, पर्टिकुलर्स ऑफ आरपीटी, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद 5 पॉइंट ऐसे थे, तो वो ये वाले, सीएसआर, कंजर्वेशन, फॉरेन एक्सचेंज, विजिल मैकेनिज्म, आरएम। ठीक है, फिर थे 4 पॉइंट डिस्क्लोजर के बारे में, एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का था, दूसरा था, एक तो अभी जो पढ़ा सब्सिडियरी से रिलेटेड कुछ, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर है। 2 डिस्क्लोजर और कौन से थे? एक लिस्टिंग एग्रीमेंट वाला था और एक और डिस्क्लोजर था इन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, फिर 4 पॉइंट हो गए ख़त्म। उसके बाद 5 पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड अगेन, तो मैनेजमेंट के बारे में, और कंपनी का डेट स्ट्रक्चर, कैपिटल एंड डेट स्ट्रक्चर के बारे में, और कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में कि क्या क्या फेलियर है क्या कॉर्पोरेट एक्शंस में। और 2 पॉइंट रहते हैं, कौन से हैं वो? मैं देख नहीं रही हूँ, बिना देखे बोल रही हूँ, इसलिए याद नहीं आया। एक तो आईपीएफ था और एक क्रेडिट रेटिंग था, ये दोनों देख लेना। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सीएसआर रिपोर्ट। सीएसआर रिपोर्ट के बारे में दिया है चीज़ें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो वी वुड जस्ट गो थ्रू विद दिस वन. So basically, there is only 10% of chance that this can come in your exam. So just look at it. What does it say? कि on or after फर्स्ट of April 20 अगर आप CSR रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एनेक्स 2, तो उसमें क्या क्या डिटेल लगेंगी, CSR पॉलिसी क्या है कंपनी की, कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, तो उसमें नेम ऑफ डायरेक्टर, उनका डेजिग्नेशन, कितनी मीटिंग्स उन्होंने हेल्ड हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, कितनी मीटिंग उन्होंने
अटेंड की है। दिस इज़ कंपोजिशन, ये मीटिंग्स के बारे में आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। देन थर्ड इज़ देयर विच इज़ प्रोवाइड the web link where composition of CSR committee, CSR policy and projects approved by the board and disclosed. Then CSR project का इम्पैक्ट असेसमेंट बताना है, तो ये आई डोंट थिंक सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ लुक एट दिस वन कि CSR ऑब्लिगेशन कितना होगा, CSR ऑब्लिगेशन कितना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट में सरप्लस ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऐड कर लो कि जो भी 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट है उसमें सरप्लस अगर कुछ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का वो ऐड कर दो। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर वो माइनस करके ऑब्लिगेशन ऑफ टू फॉर द फाइनेंशियल ईयर, टोटल CSR ऑब्लिगेशन कितना होगा फाइनेंशियल ईयर के वो निकल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि टोटल ऑब्लिगेशन कितना होगा फॉर CSR, टोटल CSR ऑब्लिगेशन कितना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सो व्हाट यू वुड राइट कि 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, कि एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कितना आ रहा है वो, उसमें सरप्लस ऐड कर दो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कुछ है तो, एन अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट यू हैव टू माइनस एंड देन यू गेट द आंसर देयर। So details of CSR amount spent against ongoing project not important. Name of the project, फिर schedule 7, local area, location, state है या district है, project duration, amount allocated for the project. These are the things there, not important. फिर है डिटेल्स ऑफ CSR अमाउंट स्पेंट अगेंस्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कि अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा भी आपने कहीं CSR अमाउंट को स्पेंड किया है क्या, अगर किया है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स डाल दो क्या। दैट अमाउंट स्पेंट इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कितना है, अमाउंट स्पेंट ऑन अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कितना है, अमाउंट स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड अमाउंट स्पेंट ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट, ये टोटल ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू निकालो फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, so how would you do that? Amount spent in ongoing project, amount spent for project other than ongoing, amount spent for administrative overheads and amount spent on impact assessment, and then if you add all of that then you will get total amount spent for the financial year. फिर क्या है, again this is not important. लास्ट में साइन आ जाती है चेयरमैन की, CEO MD डायरेक्टर के यहाँ पे आती है, चेयरमैन के यहाँ पे आती है, and this is just this section that has been mentioned there. So the most important topic of this area is corporate sustainability reporting. Again, what am I saying is corporate sustainability reporting. Now what exactly do we understand by corporate sustainability reporting? So read this one. Sustainability reporting can help organization to measure, understand and communicate, measure, understand and communicate, measure, understand and communicate ESG, which is environmental, social and governance performance, and then set goals and manage change more effectively. Alright, to read it again. So sustainability reporting can help organization to measure and understand and communicate their economic, environmental, social and governance performance. ESG में क्या बोला मैंने, their economic, environmental, social and governance performance, and then set goals and manage change more effectively. So a sustainability report is the key platform for communicating sustainability performance and impacts, whether positive or negative. Internal benefits क्या है of sustainability reporting for companies and organizations, तो उसके internal benefits बताए हैं, ठीक है। फिर उसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स बताए हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। आई जस्ट वांट टू सी और क्या है इसके अंदर। फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के की ड्राइवर्स बताए हैं, व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। एंड फिर उसके बाद है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कुछ इस तरह से ये है। फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड्स बताए हैं। एंड देन वी हैव गॉट GRI standards as under, which is external benefits of sustainability reporting and internal benefit of sustainability reporting. ये GRI standards में भी दिया हुआ है और ये सेम हम पहले जो कर रहे हैं वो भी है, रिपीटेशन है। फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया है।
चैलेंजेस इन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, चैलेंजेस क्या है वो, उसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में कुछ इस तरह से टॉपिक कवर करने हैं हमको। Sustainability, corporate sustainability reporting. First, understand this one now. So, basically, when we talk about corporate sustainability reporting, so that helps the organization to measure, understand, and communicate their economic, environmental, social, and governance performance. कि उनका economic, environment, social, and governance performance कैसा है, उसको measure करना, understand करना, communicate करना, ये help तभी करेगा जब आप corporate social sustainability reporting बनाओगे, and then set up goals and manage change more effectively. So a sustainability report is the key platform for communicating sustainability, performance and impact. मतलब sustainability report बनाओगे तभी आप अपना performance impact वगैरह देख सकते हो, ठीक है। Now, what are the internal benefits of sustainability reporting? Sustainability reporting को कुछ short form कर ले क्या? SR बोल दे, SR या SUR बोल दे, सूर्य बोल दे, नहीं, सस्त्री, क्या बोले इसको, कुछ तो शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा। SBR सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, SBR बोल दे, नहीं, चलो इसको ससरे बोलते हैं, ठीक है, इसको ससरे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। So now what are the internal benefits of ससरे for companies and organization? Internal benefits क्या है ससरे का? जब हम sustainability reporting करते हैं, जब हम ससरे करते हैं, तो उसका internal benefits क्या है? This is the question. Increased understanding of risk and opportunities, financial and non-financial performance पता चलता है, emphasize the link between financial and non-financial performance, long-term management strategy and policy and business plans, reducing cost and improving efficiency, benchmarking, then there is avoiding being implicated in publicized environment, social and publicized ESG failures. सो दीज आर द इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ ससरे। तो जब आप ससरे करो, एक मिनट इन चीज़ों को ज़रा साइड में रखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। डोंट थिंक दैट यू गोना बी अ कंपनी सेक्रेटरी, जस्ट थिंक दैट यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी राइट नाउ, ठीक है। Now your board of director is coming and asking you, Roshni, tell me one thing. Why do we need to maintain this sustainability report? What do we get out of this? And what do you think, like why exactly this report has come into the picture? Why do we have to really maintain it? Like, I have no fucking idea about what sustainability reporting is. So you tell me, being the company secretary, you tell me, what do you understand by sustainability reporting first, and what are the internal benefits or external benefits of the sustainability reporting? This question has been asked to me by my board of director. So okay, I was like fine, and it was a like quick answer, question answer set. So I was like, I have to answer it right now only, no readings or like that, right? So now see, corporate sustainability reporting you have asked me. So let me just tell you, the board of director, I'm telling to him that let me just tell you first that this report that you're talking about, corporate sustainability report, SASRE we will call it. So SASRE, what you're talking about exactly, this report helps your company, would help the company to measure, understand and communicate their economic, environmental and social performance, social and governance performance, and then set goals and manage change more effectively. So firstly, we all know that in the past page we studied that कि NGO ने कंपनीज को सोशल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए बेसिकली बोला है कि आप अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे भी ध्यान डालो। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ऑफ एवरी कंपनी टू ऑल्सो लुक आफ्टर their social, economic and governance performance. So when it comes to that, the company has to look after their economic, environmental, social and governance performance. The company has to prepare the the sustainability reporting, so that they can understand, measure and communicate this report to the general public. So this is why we maintain it. So sustainability report is a key platform for communicating sustainability performance and their impact, whether positive या positive है या negative, whatever it is, you have to communicate that. Alright, so he understood somewhere what exactly I meant by this. So he asked me again, can you repeat that?
I was like, okay, I just told you, but what if, okay, let me just tell you. So basically, company has environmental, social, and governance responsibility, right? You understand that, right? That company has ESG responsibility. So in order for company to understand, to communicate, and to measure what exactly their ESG performance, they have to prepare this report. So he was like, okay. And basically it's a key platform for communicating sustainability, performance, and impact, whether positive or negative. He was like, okay, I understood. All right, so I asked you also, no, what are the internal benefits and external benefits of this? What do we get out of this? अगर मैं ये नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा? अगर मैं ये नहीं पढ़ती हूँ तो मैं ना इंटरनल का छोड़ो, मैं एक्सटर्नल का बताती हूँ. एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा ESG का? जस्ट गेस कि इन्वेस्टर्स को मैं दूंगी तो इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी में ESG को समझ के इन्वेस्ट कर पाएंगे अच्छे से, कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा मार्केट में. और क्या होगा? कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो वही है ना, परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टेक होल्डर ज़्यादा का ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे. ये तो मैंने बोल दिया एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ठीक है. इंटरनल बेनिफिट्स क्या होगा? जब मैं ESG बना रही हूँ तो मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा इससे? मेरे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा जब मैं ESG बना रही हूँ? तो क्या बेनिफिट होगा? टेल मी. नहीं पता तो छोड़ दो ना, पढ़ाई करो. चलो, एक्सटर्नल जो देखा था उसमें देखो वही है क्या? एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ ससरे. सो मिटिगेटिंग और रिवर्सिंग नेगेटिव CSG अगर कुछ है तो ओके. रेपुटेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, वी टॉक्ड अबाउट इट. Enabling external stakeholder to understand the organization's true value and therefore investing. Demonstrating how the organization influences and influenced by expectation about sustainability development. सो ट्राई टू फोकस ऑन इंटरनल बेनिफिट. जस्ट थिंक दैट कि यही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में 2022 दिसंबर में, यही क्वेश्चन आ रहा है. देन यू कांट से ना कि नहीं याद आ रहा, राइट. व्हाट आर द इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? कि इंटरनल बेनिफिट्स क्या होगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करेंगे तो. इंटरनल बेनिफिट क्या होगा कंपनी को? तो कंपनी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, उसको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है. देन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा. फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कर सकती है, पॉलिसी एंड बिजनेस प्लान बना सकती है. इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड है. एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. बेंच मार्किंग, अवॉइडिंग बींग इम्प्लीकेटेड इन ESG, avoiding being implicated in publicized ESG failures. Avoiding being implicated in publicized ESG failures. So again ये पूरा रीडिंग वाला है, एक्चुअली रट्टाफाई वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रट्टा मार लो, और ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का इंटरनल बेनिफिट्स क्या है और एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या है. सो एनवी से एक्सटर्नल बेनिफिट तो उसे कंपनी का रेपुटेशन, ब्रांड लॉयल्टी, ये सब बढ़ेगा. और क्या देखा था एक्सटर्नल बेनिफिट में? कि कंपनी का ट्रू वैल्यू पता चलेगा इन्वेस्टर्स को. 2 पॉइंट हुए. फिर अगर कंपनी में ऑलरेडी नेगेटिव ESG है तो कंपनी जो मिटिगेट कर सकती है, रिवर्स कर सकती है नेगेटिव ESG इम्पैक्ट्स को, ठीक है. इनेबल, ये सब हो गया था. डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस, demonstrating how the organization influences or is influenced by expectation about sustainable development. ये क्या था? एक्सटर्नल बेनिफिट्स, राइट. तो डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस, की ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय एक्सपेक्टेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट. अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो दीज वर द एक्सटर्नल बेनिफिट्स. नाउ इंटरनल बेनिफिट व्हेन वी कम टू, कि आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो. इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, स्वॉट एनालिसिस कर लो. देन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों के बारे में पता चलेगा. लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ये, एंड पॉलिसी एंड बिजनेस प्लान्स है. रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, क्या बोला मैंने? रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. बेंच मार्किंग, एंड देन अवॉइडिंग बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ESG फेलियर्स. सो दिस यू हैव टू रेक्टिफाई, देयर इज नो अदर ऑप्शन. अभी इससे ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं सकती इस चीज़ को.
And since I'm not keeping well, what I'm gonna do is I'm just gonna leave this here. I'm generally not keeping well. I'm gonna make the another video for the third part of this. Have a good day.